हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कम बैक टू द चैनल एंड स्टार्ट विद द continuing session, that is final account introduction part. And today we are going to start with the format of the trading account that has been already discussed in the previous introduction part, right? तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जब माइंड में आएगा, दिमाग में कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, तो आपको चार बात हमेशा याद रखना है, राइट। पहला बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट ना, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट इन द सेकेंड, इट इज द नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। and the trading account we are preparing to find out the gross profit and the gross loss. And in the third one, the difference between the net sales and the cost of goods sold is either gross profit or gross loss, right? तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोग, मैं आपको चार बात बताए थे कि इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, एंड it is nominal account in nature, and the difference between the net sales and the cost of goods sold is either gross profit or a gross loss, right? Then how the net sale would be determined? Now cash sale and credit sale equals to total sale minus sales return equals to net sales, because the trading account and in the cost of goods sold, the opening stock add purchases less purchases return add direct expenses less closing stock, that we are find out the cost of goods sold. Is trading account only tells about the purchase of goods and the sale of goods, and the difference is the profit. That profit is named as the gross profit, right? तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट इन व्हिच द ट्रेडर वांट्स टू नो, right, in which the trader wants to know the profitability on account of goods purchased and sold, right? The profitability on account of goods purchased and sold, right? तो जो ट्रेडिंग कंसर्न है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो जो ट्रेडर एक सिंगल ओनर होता है, जो माल वो खरीदारी करता है उसको आगे जाकर बेचता है, तो इसके डिफरेंस में जितना प्रॉफिट होता है तो इतने से ताल्लुक रखता है कि एक ट्रेडर एक सिंगल ओनर उससे ताल्लुक रखता है कि उससे डिफरेंस का अमाउंट क्या है, राइट। तो इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेते हैं, तो उसके साथ भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा वेजेस है, कैरेज इनवर्ड, पावर, फ्यूल, गैस, वाटर, ऑक्ट्राई, राइट, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है, राइट। तो हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, मैं आपको बताया था कि जब हम गुड्स को अप टू गोडाउन अप टू बिजनेस तक लाते हैं, तो उसको लाने से जितना खर्चा होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। The expenses which is incurred in connection with the purchase of goods and in the process of production, and the expenses incurred in connection with the purchases of goods, right? Suppose loading and unloading on the purchases of goods, carriage inward, freight, octroi, these are the expenses are incurred at the time of purchases of goods, right? And at the time of manufacturing of goods of a manufacturing concern by manufacturing entity, right, at that time they are preparing the manufacturing account or production account to find out the cost of goods sold. तो जितना माल वो बेचा है उनका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम लोग को पता चलता है, राइट। तो हम यहाँ पर जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने सारे आइटम होता है, राइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने सारे आइटम होता है, तो वो सब आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है, ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है। तो बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स appearing in the trial balance, balances of different accounts appearing in the trial balance relating to the trading account are transferred to the trading account, right? And we are passing the closing entries.
राइट बच्चों, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बेटा बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के समय में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कहां से वो बनता है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, ना सर ट्रायल बैलेंस। तो उसी ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, ये दो अकाउंट एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेरेशन करते हैं, राइट। तो ये जो दो अकाउंट और स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस से वो बनाते हैं, उस ट्रायल बैलेंसेस से जो लेजर अकाउंट का जितना बैलेंस होता है उस लेजर अकाउंट में जो बैलेंस रिलेटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट होता है, balances of different ledger accounts appearing in the trial balance are to be closed by transferring it into the trading account, right। और एक बार भी बोल देता हूं, balances of different ledger accounts appearing in the trial balance are to be closed by transferring it into the trading account, right, by passing these entries that trading account debited to opening stock, to purchases, to direct expenses, to sales return, राइट। मैं भी यहाँ पर फॉर्मेट पे भी आपको दिखा देता हूं, जैसे आपको दिमाग में ये पूरा फिक्स हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, एंड सेल्स रिटर्न, राइट। एंड इन द सेकेंड एंट्री सेल्स अकाउंट टू डेबिट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, sales return account to sales account to debit, purchases return account debit to trading account, right? And in the third closing entries, these are the adjusting entries are need to be passed to close the trading account, that is closing stock account debited to trading account. It is one of the adjusting entries, right? Closing stock account debited to trading account. If the normally and usually the balance of the closing stock are appearing in the outside the trial balance, right? So, and it is to be recorded in the credit side of the trading account, and simultaneously it is to be recorded in the asset side of the balance sheet, right? That's why we are passing the adjusting entries, that is closing stock account debited to trading account, right? And in the fourth journal entry, and the difference between the trading account, the difference between the trading account is either gross profit or gross loss, right? So this gross profit and gross loss are transferred to the trading, are transferred to the profit and loss account, right? By passing the journal entry, if the credit side exceeds than the debit side, if the credit side exceeds than the debit side, we can say that if the net sales over the cost of goods sold, excess of net sales over the cost of goods sold, that is called the gross profit, and we are passing the journal entry, that is trading account debited to profit and loss account, right? And in case of there is gross loss, अगर gross loss होता है, that means the debit side is more than the credit side, that means the cost of goods sold is excess or more than the credit side, मतलब net sales side, the difference are called as the gross loss, right? That is profit and loss account debited to trading account, right? Profit and loss account debited to trading account. ठीक है बच्चों, please pause the video and note it down. Let's start with some problems of the trading account, right? पेज नंबर 1.8 से हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आज ऑन 31st December 2014 प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। Preparation of the trading account from the following balances, different accounts balances are given, and from that information we are going to prepare the trading account, right? And that information pertaining to the 31st December 2014, right? तो पहले हमको दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1st January 2014, stock on 1st January 2014 is 2500, stock on 1st January 2014। तो बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1/1/14 को जो बैलेंस दिया हुआ है 1/1/14 को, तो जब पीरियड उनका एंड होता है 31/12/2014, राइट। तो 2014 31st December is the closing,
and 1st January 2014 is the opening, right? तो पहले दिया हुए बैलेंस को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, एंड 31 दिसंबर 2014 को जो बैलेंस दिया हुआ है उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि टू ओपनिंग स्टॉक, right, to opening stock is rupees 2500 and stock on 31st December 2014, stock on 31st December 2014 is how much? Is 2650. तो यहां पर हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक इज 2650, राइट? उसके बाद दिया हुआ है परचेज, राइट? उसके बाद दिया हुआ है क्या? परचेज। चलिए टू परचेज हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, बिकॉज यहां पर परचेज से रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ है। तो परचेज रिटर्न टू परचेज इज 17,000, 17,000 एंड उसके बाद दिया हुआ है सेल्स, बाय सेल्स in the credit side, by sales 24,700, right? and फिर दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है बच्चों? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड लेस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड हाउ मच? दैट इज 500 रुपीज। तो यहां पर हो गया 24,200 रुपीज, राइट? एंड उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज से रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड 700, राइट? ये हो गया आपका 16,300, राइट? उसके बाद है वेजेस। बच्चों वेजेस क्या है? बच्चों वेजेस है क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस जब हम फैक्ट्री में कोई काम करता है, प्रोडक्शन पे कोई काम करता है, तो उसको हम क्या देते हैं? वेजेस। अगर वो इंसान बंदा जब भी ऑफिस में काम करता होगा, कभी वेयर हाउस में काम करता होगा, कभी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता होगा, तो उसको हम देते हैं सैलरीज, राइट? and those workers who are engaged in the production and in the factory, we are paying the wages, right? To wages how much? To wages 1600, to wages 1600। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड पे अप टू गोडाउन लाने तक का जो खर्चा है, बिजनेस तक लाने के लिए जो खर्चा होता है वो होता है कैरेज। टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बच्चों क्या होता? कैरेज इनवर्ड दे रखा है 1,000 रुपए, राइट? एंड उसके साथ वो दिया है कमीशन ऑन परचेज, इट इज ऑल्सो ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो परचेज के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है टू कमीशन ऑन परचेज, राइट? टू कमीशन ऑन परचेज, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये हमको दे रखा है 1250, राइट? 1250 इतना इंफॉर्मेशन हमको दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमारा डेबिट जो क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड यहाँ पर हो गया 24,200 प्लस 2650 इक्वल्स टू 26,850, that is 26,850, right? Credit side is more than the debit side, right? तो यहां पर हो गया माइनस 2500 माइनस 16,300 माइनस 1600 minus 1,000 and minus 1250, and the amount of gross profit is rupees 4,200 to gross profit. To gross profit, that is 4,200, right? 4,200.
come to the second question. Right, from the following trial balance, prepare a trading account for the year ending 31st March 2015 in the books of Mr. John. Right, we are preparing the trading account for the year ending 31st March 2015 in the books of Mr. John. Right, एंड यहाँ पर हमको दे रखा है कि एक ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ले गया है क्योंकि वो दिए थे कि वो ओनली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट लेजर अकाउंट बैलेंस। राइट इन द फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज दे आर नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑल आर इक्वल, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ये सब नहीं दिए थे, ओनली डिफरेंट अकाउंट का बैलेंस दिए थे। राइट, तो इन द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस prepare the trading account for the year ending 31st March 2015 in the books of Mr. John. Let's start with this problem. पहले हमको दे रखा है कि परचेज 17,300 टू परचेज 17,300 17,300। राइट, देन उसके बाद सेल्स रिटर्न, जहां पर जो जाएगा उसको हम लेकर के वहां पर रख देंगे। राइट, सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स रिटर्न। राइट, सेल्स रिटर्न हमको दिया है, सेल्स रिटर्न कितना, सेल्स रिटर्न 500। राइट, सेल्स रिटर्न 500 रुपए। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं वेजेस टू वेजेस। राइट, टू वेजेस हाउ मच 1200। राइट, उसके बाद कैरेज इनवर्ड भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने आपको बोला था बिजनेस और गोडाउन तक लाने के लिए जो खर्चा होता है, जो सामान लाने के लिए जो खर्चा हम लोग करते हैं, तो उसका मतलब एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये परचेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। राइट, तो इसीलिए हम लेते हैं कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, कैरेज इनवर्ड दैट इज हाउ मच 250। राइट, और उसके बाद भी है कैरेज आउटवर्ड। राइट, तो परचेज करने तो सामान को लाने के लिए बिजनेस तक जो खर्चा होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और बिजनेस में सामान पहुंचने के बाद जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। राइट, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड, दीज आर द sales relating to the expenses. So we are recording in the trading account only direct expenses. Right, so carriage outward are not recorded in the trading account. Right, and then after दिया हुआ है बिल्डिंग 10,000, तो बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट तो एसेट बैलेंस शीट में होगा। उसके बाद कैश भी एसेट हमारे लिए। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफिस का खर्चा तो परचेज से क्या लेना देना है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस। राइट, सेलिंग एक्सपेंसेस भी सेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाने वाला है। उसके बाद मैनेजर सैलरी, मैनेजर कहां पर होता है, मैनेजर का सैलरी जो होता है ऑफिस में जो मैनेजर बैठता है, सेल्स में जो मैनेजर है उसको हम मैनेजर के सैलरी देते हैं, तो इसलिए वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। राइट, तो यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये सब दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। Right, and it is when the closing stock appearing inside the trial balance, it is not to be taken into the trading account because it is recorded, because it is already adjusted with the purchase, and it is to be recorded in the asset side of the balance sheet. Right, so it is to be ignored. Right, then after sales 22,500 sales by sales 22,500 by sales, तो डिडक्ट करने के बाद हम लोग को मिल गया 22,000। राइट, उसके बाद कैपिटल वो लायबिलिटी साइड में कैपिटल। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेजेस रिटर्न आउटवर्ड परचेज में माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितने बच्चों, 400 रुपए। राइट, तो माइनस करने के बाद यहां पर आ गया 16,900। राइट, 16,900।
तो उसके बाद हमको यहाँ पर दिखता है कि और कुछ नहीं, इतने में क्वेश्चन खत्म होता है। इससे हमको दिखता है कि जो डेबिट साइड है, सॉरी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा होता है 22,000। एंड इसके साथ जब माइनस करेंगे हम लोग 22,000 माइनस 16,900 माइनस 1,200 माइनस 250, तो हाउ मच 3650, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 3650, that is 22,000, right? Pause the video, note it down. Next start with the third problem, right? Question there हुआ है, the following balances are extracted from the books of Raj Traders for the year ending 31st December 2014. The following balances are extracted from the Raj Traders for the year ending 31st December 2014, राइट? क्या इंफॉर्मेशन बैलेंस हमको दिया हुआ है? ये ट्रायल बैलेंस नहीं, एक बैलेंस दिया हुआ है कि यहाँ पर स्टॉक ब्रैकेट में 1114 1 जनवरी 2014, दैट इज 10,000, मतलब ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक, राइट? टू ओपनिंग स्टॉक, is how much? 10,000, right? Then purchases 60,000, to purchases expenses 60,000, right? उसके बाद है सेल्स, बाई सेल्स बच्चों कितना है यहाँ पर? सेल्स 70,000, राइट? और उसके बाद है कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गोडाउन तक लाने के लिए जो खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज के, टू कैरेज इनवर्ड दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज हाउ मच? 1,000, राइट? देन उसके बाद दे है कैरेज आउटवर्ड। मैं बताया था कैरेज आउटवर्ड कंसिडर नहीं करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज वो खर्चा होता है, सेल के ऊपर खर्चा होता है, तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगी, राइट? उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में नहीं, यहाँ पर नहीं जाएंगे। उसके बाद वेजेस यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, टू वेजेस इज हाउ मच? वेजेस इज 1,000, राइट? और क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन भी हमको दिया हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है मिस्टर राज अर्न्स ए ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हमको बताया है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ना? ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, तो मतलब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमको पहले से दे रखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, मतलब 20% ऑन सेल्स हमारा कितना है? 20% ऑन 70,000, तो से 20% हो गया हमारा 14,000, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट? क्लोजिंग स्टॉक आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट? तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये बात बोलता हूं कि यहाँ पर पहले से ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो मिसिंग क्या है? हमारे यहाँ पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो किसी के दिमाग में अगर ये डिफरेंस अमाउंट ग्रॉस लॉस आता है तो उसको निकाल दो, बिकॉज साइमल्टेनियसली इन द ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन नॉट सी द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस एट ए टाइम, राइट? द ग्रॉस प्रॉफिट आर appearing in the debit side, right? If it is appearing, then the difference amount, that is the closing stock, that is balancing figure, right? Then we are going to calculate that one. तो यहाँ पर 10,000 डेबिट साइड में 10,000 प्लस 60,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 14,000, तो हो गया कितना? 86,000, राइट? तो 86,000, राइट? तो 86,000 में अगर हम 70,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा क्या?
by closing stock 86,000, 70,000, that is 16,000. By closing stock, that is balancing figure. That is balancing figure, right? 16,000 तो जोड़ देंगे तो यहां पर हो गया कितना, 86,000, राइट? ठीक है। Next, come to the fourth problem, right? Question number 4, right? We are preparing the trading account. Okay. From the following figures, ascertain the gross profit, right? From the following figures, ascertain the gross profit. Opening stock 6,000, debit side trading account to opening stock 6,000. उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्लोजिंग स्टॉक यहां पर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 12,300. फ्रेट एंड पैकिंग ऑन परचेज, फ्रेट एंड पैकिंग ऑन परचेज, तो परचेज से ये जुड़ा हुआ खर्चा है तो इसीलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और उसको हम डेबिट साइड में लेंगे टू फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, to freight and packing expenses, that is 4,500, right? परचेज रिटर्न, देन उसके बाद है परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न बच्चों क्या है, तो परचेज से हम लोग माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, तो टू परचेज इनर कॉलम में लेस परचेज रिटर्न. तो परचेज रिटर्न, तो परचेजेस कितना है 65,300 एंड परचेजेस रिटर्न हाउ मच इज 2,000, तो 63,300. उसके बाद सेल्स, बाई सेल्स यहां पर दे रखा है बाई सेल्स. बच्चों बाई सेल्स कितना है 1,20,500 एंड लेस सेल्स रिटर्न. उसके बाद भी सेल्स रिटर्न हमको दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न इज 4,100, राइट? 1,20,500 माइनस 4,100, दैट इज 116,400, राइट? और उसके साथ भी दिया हुआ है सेल्स हो गया और सेल्स रिटर्न भी हो गया. पैकिंग ऑन सेल्स 12,000 there. Packing on sales, that is sales related expenses, it is not recorded in the trading account. तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में था, तो हम जोड़ देंगे. तो क्रेडिट साइड इनको जोड़ेंगे तो 12,300 प्लस 116,400 116,400 प्लस 12,300 इक्वल्स टू 1,28,700, right? 1,28,700, right? Minus 6,000 and minus 4,500 और उसके साथ माइनस 63,300. तो बच्चों 54,900 ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन 54,900, राइट? 54,900. ठीक है बच्चों. तो इफ एनी डाउट, तो हमको
ये बात हमको ठान लेना है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपका कहीं भी किसी भी तरह की मुश्किल यहाँ पर आपको नहीं होगा। बिकॉज अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो यहाँ पर आपको ये मानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में तो यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाई सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, परचेजेस ये भी डायरेक्ट दिया होगा, और उसके साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो खर्चा हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं तो वो परचेज का खर्चा होता है, परचेज से वो खर्चा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसी खर्चे को हम लोग क्या करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अगर कोई भी खर्चा परचेज या प्रोडक्शन के साथ वही वास्ता नहीं रखता है, कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे। राइट, ये सबको हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जिस खर्चे का रिश्ता, जिस खर्चे का रिलेशन परचेज के साथ यानी प्रोडक्शन के साथ होगा तो इसको हम यहां पर दिखाएंगे, अगर नहीं है तो यहां पर नहीं दिखाएंगे बस। राइट, थैंक यू, pause the video, note it down. If any doubt please ask me in the comment section. Thank you.